Hello students, welcome all of you. I am Poonam Gidwani, your EVS teacher, and today we will continue our 12th chapter, that is our pride. In previous part of this chapter, we have discussed about Nagarjuna, who was a great philosopher and a famous chemist of ancient India, and he gave a great contribution to Indian national unity. And today we will discuss about Jagdish Chandra Basu. Jagdish Chandra Basu was a great scientist of India, and his inventions were in physics and biology, and he established the Basu Science Temple. So let's discuss Jagdish Chandra Basu. Here you can see an image of Jagdish Chandra Basu, who was a great scientist. एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे. Okay, Jagdish Chandra Basu was the great scientist of India. So we are very lucky कि हमें जगदीश चंद्र बसु जैसे great scientist मिले. Okay, he studied the Ramayana and Mahabharata in his student life. So when Jagdish Chandra Basu was a student, तो अपनी student life में ही उन्होंने रामायण और महाभारत को पढ़ा था. रामायण and महाभारत, these are two great epics. Okay students, ये दोनों ही हिंदुओं के great epics हैं. Okay. Along with study, he had the hobby of gymnastics and boxing. Students, do you know the meaning of hobby? We have earlier discussed क्या meaning होता है hobby का. आपकी भी कुछ hobbies होंगी. तो जगदीश चंद्र बसु की hobbies क्या थी? जिम्नास्टिक और बॉक्सिंग थी. अलॉन्ग विद द स्टडीज़ के अलावा, यानी स्टडीज़ में तो वो ब्रिलियंट थे ही थे, साथ ही साथ उनकी हॉबीज़ क्या थी? जिम्नास्टिक्स एंड बॉक्सिंग. ओके, इन स्कूल डेज ड्यूरिंग द स्पेयर टाइम यूजिंग हिज स्मॉल सेविंग्स ही यूज्ड टू टेक केयर ऑफ plant and animals. So when he was a student in school days, अपने school days में, during the spare time means when he had the free time, तो अपने free time में, spare time में वो क्या करते थे? Using his small savings, अपनी जो छोटी छोटी savings थी, small savings थे, उससे वो जो plants थे और animals थे उनकी देखभाल करते थे. He used to take care of plants and animals. His inventions were in physics and biology. Physics means, student, the scientific study of natural forces like heat, pressure, electricity, sound, etc. And biology means scientific study of living things. Okay, so उनके जो inventions थे वो किस में थे? Physics में and biology में. He got success in ringing an electric bell and firing a revolver placed at 23-meter distance using electric waves. स्टूडेंट्स, एक बहुत बड़ी सक्सेस उन्होंने हासिल की थी अपनी लाइफ में. ही गॉट सक्सेस इन रिंगिंग एंड इलेक्ट्रिक बेल. किस में? एक इलेक्ट्रिक बेल को उन्होंने बजाया था यूजिंग इलेक्ट्रिक वेव्स. किसका यूज़ करके? तरंगों का यूज़ करके, इलेक्ट्रिक वेव्स का यूज़ करके. एंड ही गॉट सक्सेस इन फायरिंग अ रिवॉल्वर प्लेस्ड एट 23-meter डिस्टेंस. और उन्हीं इलेक्ट्रिक वेव्स का यूज़ करके उन्होंने सक्सेस हासिल की थी एक रिवॉल्वर फायर करने में, जो कि 23 मीटर्स डिस्टेंस पे रखा हुआ था. और किसका यूज़ किया था उन्होंने? इलेक्ट्रिक वेव्स का, यानी कि विद्युत तरंगों का. ओके स्टूडेंट्स, हिज इन्वेंशंस, जो उनके इन्वेंशंस थे, जो उनके आविष्कार थे, जो उन्होंने किए थे, वर मोर एडवांस्ड देन दोज ऑफ मार्कोनी एंड अदर साइंटिस्ट. तो उस टाइम के जो फेमस साइंटिस्ट थे, जो ग्रेट साइंटिस्ट थे, उनके कंपैरिजन में जो उनके इन्वेंशंस थे, दे वर मोर एडवांस्ड, बहुत ज़्यादा एडवांस थे. बट ही डिड नॉट गेट इट patent. Patent means, students, the official right to be the only person to use, make or sell a product or an invention. It's a document that shows that it is your right. मतलब उन्होंने अपने किसी भी invention को patent नहीं करवाया, एकाधिकार उस पर प्राप्त नहीं किया, और you can say उन्होंने registration नहीं करवाया, because he believed that scientific inventions are public property. Because जगदीश चंद्र बसु को ये लगता था that all the scientific inventions are not a personal property. उनके अकॉर्डिंग जो scientific inventions थे वो public property हैं, उन पे किसका हक है? पूरी जनता का, पूरी
पब्लिक का. दिस इज द रीजन ही डिड नॉट गेट एनी इन्वेंशन पेटेंट. उन्होंने किसी भी अपने इन्वेंशन को पेटेंट नहीं करवाया. मोनोपोली on scientific inventions is not justified, and according to Jagdish Chandra Basu, monopoly on any scientific invention उनको लगता था कि ये justify नहीं है. Monopoly means students the complete possession or right on something and that is not shared with any person. किसी पे complete possession होना उसको हम बोलते हैं monopoly, जो किसी के साथ शेयर नहीं किया जाता. But according to जगदीश चंद्र बसु, जो scientific inventions थे उनकी जो monopoly है वो justified यानी वो सही नहीं थी. That's why he did not get any invention patent. तो उन्होंने किसी भी invention को patent नहीं करवाया. It was actually an Indian thinking. और ये जो thinking थी वो एक ट्रूली इंडियन थिंकिंग थी, एक भारतीय विचारधारा थी, सोच थी. उनको ऐसा लगता था इन इन्वेंशंस पर पब्लिक का पूरा पूरा हक है. ही डेमोन्स्ट्रेटेड दैट प्लांट्स आर सेंसिटिव. उन्होंने ये हमें बताया, उन्होंने ये प्रदर्शित किया, डेमोन्स्ट्रेट किया दैट plants also feel pain and the plants are sensitive. plants बहुत sensitive होते हैं, उनको भी human beings की तरह pain होता है. they also feel the sorrow and हैप्पीनेस लाइक ह्यूमन बींग्स. तो जो प्लांट्स हैं उनको भी हैप्पीनेस फील होती है, उनको भी सॉरो फील होता है लाइक ह्यूमन बींग्स. जैसे ह्यूमन बींग्स को दुख होता है, खुशी होती है, इन द सेम वे प्लांट्स आर सेंसिटिव एंड दे फील द सेम सॉरो एंड हैप्पीनेस लाइक ह्यूमन बींग्स. ओके, विद द हेल्प ऑफ सोसाइटी ही एस्टैब्लिश्ड द बसु साइंस टेम्पल. और वो इतने बड़े साइंटिस्ट थे, इतने ग्रेट थे कि सोसाइटी की हेल्प से उन्होंने एक टेम्पल इस्टेब्लिश किया एंड द नेम ऑफ द टेम्पल इज बसु साइंस टेम्पल, बसु विज्ञान मंदिर. ओके स्टूडेंट्स, इट्स ऑल अबाउट जगदीश चंद्र बसु एंड नाउ लेट्स डिस्कस सम क्वेश्चंस एंड आंसर. ओके स्टूडेंट्स, give the names of devices that can be operated without electric wire. So students, as we have earlier read that Jagdish Chandra Basu got success in ringing an electric bell and firing a revolver using electric waves. तो हमें बताना है कि without electric wire कौन से डिवाइसेस हम ऑपरेट कर सकते हैं. येस, इट्स एन ईजी क्वेश्चन. कौन कौन से डिवाइसेस हैं जिनके लिए हमें इलेक्ट्रिक वायर की ज़रूरत नहीं पड़ती? रेडियो, यस, लैपटॉप, मोबाइल, इनके लिए हमें इलेक्ट्रिक वायर की ज़रूरत नहीं पड़ती. दीज आर पोर्टेबल, हम इनको कहीं भी ले जा सकते हैं बिना वायर के, राइट. एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज पेटेंट. पेटेंट क्या होता है? जगदीश चंद्र बसु ने अपने इन्वेंशंस को पेटेंट नहीं करवाया था, राइट. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेटेंट? पेटेंट मीन्स अ पेटेंट इज द ग्रांटिंग ऑफ a property right by a sovereign authority to an inventor. क्या होता है पेटेंट? Patent is the right to be the only person to use a product, sell or make a product or an invention. It's a document that shows your right. तो पेटेंट क्या होता है? एक प्रॉपर्टी राइट होता है जो कि एक इन्वेंटर को दिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं एकाधिकार. ओके स्टूडेंट्स, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड जगदीश चंद्र बसु नॉट अप्लाई फॉर द पेटेंट. उन्होंने पेटेंट के लिए अप्लाई क्यों नहीं किया था? बिकॉज इंडियन थिंकिंग थी. क्या थिंकिंग थी? कि ये जो इन्वेंशंस है ये पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, इन पर पब्लिक का अधिकार है. ये जो इन्वेंशंस है वो पब्लिक की प्रॉपर्टी है, राइट. बिकॉज ही बिलीव्ड दैट साइंटिफिक इन्वेंशंस आर पब्लिक प्रॉपर्टी. उनका ये मानना था, उनका ये बिलीव था कि साइंटिफिक इन्वेंशंस जितने भी हैं ये पब्लिक प्रॉपर्टी है एंड मोनोपोली ऑन साइंटिफिक इन्वेंशंस इज नॉट जस्टिफाई. और उन पे मोनोपोली जस्टिफाइड नहीं है. मोनोपोली मीन्स कंप्लीट पोजेशन एंड दैट इज़ नॉट शेयर्ड विद अदर्स, जिसको हम दूसरों के साथ शेयर नहीं करते. तो जगदीश चंद्र बसु का मानना था कि ये जस्टिफाइड नहीं है. सो इट्स ऑल अबाउट जगदीश चंद्र बसु. इन नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट भगिनी निवेदिता who devoted her life in service to others and her guru was Swami Vivekanand. So students, till then have a good day. Thank you.